Hello everyone, welcome to the Manuvlo classes in the session of daily news analysis. Today you are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to have a positive thought. This is the future depends on what you do today. It is a thought by Mahatma Gandhi, and this thought is clearly indicating your actions in present. It means if you are doing hard work right now in present, then you can be assured that your future will be bright. It means एक बड़ी सिंपल सी कहावत है हिंदी में, जो बोएगा सो काटेगा. It means अगर आज आप प्रेजेंट में गुड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड यू आर डेडिकेटेड फॉर योर ड्रीम्स एंड योर एक्शंस इन प्रेजेंट, देन आपका जो फ्यूचर है वो डेवलप हो जाएगा. सो प्रेजेंट के जो एक्शंस हैं वो फ्यूचर को डेवलप करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ क्वेश्चन to revise our previous day session. What is the primary difference between real GDP and nominal GDP? Because in last day session we also discussed about the GDP growth of Indian economy in last financial year. Option A is saying that you have to first of all just see the difference. It means you have to find out the difference between real GDP and nominal GDP. So option A, real GDP adjusted for changes in population. No, there is no relation of GDP with population in terms of real or nominal. Option B, real GDP is adjusted for changes in the level of production. While देखो इसका जो प्रोडक्शन के लेवल से रियल जीडीपी का रिलेशन नहीं है, its relation is related with another thing. Option C, real GDP adjusted for inflation. Yes, this is the right point. And while nominal GDP is not, so option C is correct, because when we calculate the real GDP, then we adjust the inflation in the price of goods and services. So this is the correct answer. Option number 2, you have to fill in the blank, is an office responsible for conducting large scale sample surveys on an all India basis. Because in the last session when we were discussing about a GDP growth of Indian economy, then we also discussed that who is the authorized office or the responsible office from the government of India to calculate the GDP data. So it is PMO, the Office of the Finance Minister, National Statistical Office NSO, or Reserve Bank of India. So this is the office, National Statistical Office. यही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में जीडीपी ग्रोथ है उससे रिलेटेड डेटा के लिए, सर्वेज के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, the National Statistical Office acts as the nodal agency under the Ministry of. So it works under which ministry? Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, या Ministry of Economic Affairs. So guys, the correct answer is A. Ministry of Statistics and Program Implementation is the superior body or the nodal body which leads the works of National Statistical Office. Now we are going to discuss question number 4. What was the GDP growth rate of Indian economy in the previous financial year? जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो क्या थी? Here we are talking about the financial year from 2023 to 24. Can you tell me that which is the date of India's financial year? कि किस डेट से ये स्टार्ट होता है और कब ये एंड होता है? So this is the question and you have to find out its answer.
So what is the correct option for India's last year's GDP growth? 7%, 10%, 8.2%, or 5%? So guys, the correct answer is 8.2%. You can find out its explanation in the last day session. Question number 5. Find the incorrect statement. So this is incorrect, not correct. A statement about the only ape found in India. There is only ape in India, so you have to find out the incorrect statement. So only ape in India is, it is Holuk gibbon. Yes, it's correct option. It is found in Western Ghats. No, this is incorrect option. It is found in the Northeast India. Yes, this is correct option. And it is tailless ape. Yes. So regarding the only ape in India, we have three options as correct. It is Hulu gibbon, it is found in the Northeast India, or it is tailless ape. So three options are correct. When we talk about Western Ghats, so this region of India is called Western Ghats. This region is known as Eastern Ghats. And when we go to either this Northeast India, so here we find the Huluk gibbon. Okay. So now the question number 6. Wildlife Institute of India is located in. ये कहाँ लोकेशन इसकी है? Because आपने देखा होगा कि in the last day session we discussed that the Indian Railways in cooperation with Wildlife Institute of India and the government of Assam, the railways is constructing the canopy bridge. The canopy bridge जो ट्रीज के साथ में कनेक्ट करके वो ब्रिजेस जो है क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि जो एप है होलुक गिब्बन वो उन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से नीचे मींस लैंड से होते हुए ना जाए और वो ऊपर से होते हुए उनको क्रॉस कर सके. सो कि जो वाइल्ड स्पेशली जो हुलूक गिब्बन है ये मोस्टली कैनोपी पर रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, और इनका जो है वो कल्यूजन ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो रेलवेज के साथ में. सो दीज ब्रिजेस आर बीइंग constructed by the Indian Railways with collaboration of Wildlife Institute of India. So you have to find out the headquarters of Wildlife Institute of India. It is in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Kolkata. So the correct option is Uttarakhand. So this is the correct option. The Wildlife Institute of India is an autonomous institution under the Ministry of. So ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? Home Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Science and Technology, Earth Sciences, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So the correct answer is D, because the Wildlife Institute of India is located in Uttarakhand, Dehradun, and it works under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The next question is, which one is the capital city of Mongolia? In the yesterday session, we discussed about Indian government is trying to establish more commercial and trade partnership with Mongolian government, so we can import some rare earth material, the cooking coal, and some other important minerals to bypass China. So Mongolia was in news in relation with India. So you have to find out the capital city of Mongolia. It is Jakarta, Seoul, Ulaanbaatar, and Pyongyang. So the correct answer is Ulaanbaatar. This is the capital of Mongolia. Although Jakarta is the capital of Indonesia, South Korea की capital है Seoul, and the capital of North Korea is Pyongyang. So this correct option is Ulaanbaatar.
So here you can find out the capital of other three countries. Jakarta for Indonesia, Seoul for South Korea, and Pyongyang for North Korea. Now we are going to discuss today's current affairs. So the first one is Deepa Karmakar becomes first Indian gymnast to win gold in Asian Senior Championships. So जो दीपा कर्माकर है ये अभी रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट बनी है जिन्होंने एशियन सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड विन किया है. ओके, so Deepa Karmakar landed a gold medal in vault to become the first Indian gymnast. और जिम्नास्ट कौन होते हैं आप जानते होंगे कि ये बहुत सारी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटीज एंड turns, movements, body motions. So these kind of actions of the body are considered as gymnastics. So in the Asian Women's Artistic Gymnastics Championship उन्होंने जो कि कहाँ पर हुई है ताशकंद में. So here you have to learn the basic points so you can find out such questions that Deepa Karmakar is associated which sport. यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं अभी मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ. और इन्होंने क्या विन किया है? सो इन्होंने विन किया है गोल्ड मेडल. किस स्पोर्ट में किया है ये आपका नाम होगा और उसमें नेम होगा स्पोर्ट्स का. अनदर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इज द लोकेशन ऑफ एशियन चैंपियनशिप. ये जो चैंपियनशिप गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स हुए हैं, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे? So these have been organized in Tashkent. Okay, so here you can find out the basic information regarding this, and for more information you can also find out some other points. The basic fact was that recently in last some years she was banned for playing the sports because she was convicted for doping. और इनकी दोनों जो नी है उनमें भी इंजरी थी और बाद में इन्होंने उनकी सर्जरी कराई और उसके बाद अपने आप में जो है दीपा कर्माकर मैडम है इन्होंने अपने आप को रिकवर किया. सो दिस इज वेरी एंथुसियास्टिक वर्क कि इन्होंने इतने सारे जो हर्डल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, उन सबको भी जो है ओवरकम किया और देन इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया और वो भी इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिम्नास्ट बनी है जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई है. सो स्पोर्ट्स में ये रिसेंट टाइम में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी एंड स्पेशली इट इज एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ट्रेड और द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया. सो द पॉइंट इज दैट इंडिया records trade deficit with 9 of top 10 trading partners. It means अगर इंडिया के टॉप 10 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से 9 के साथ में हमारा क्या है? ट्रेड डेफिसिट है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डेफिसिट? तो ट्रेड डेफिसिट मीन्स इंडिया इंपोर्ट्स मोर थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स lesser things in lesser amount. So whenever the import is higher than the export, so this deficit, this gap is known as trade deficit. So पहला तो आपका ये concept clear होना चाहिए. So you can find out the basic difference between the trade export and import, or that can be known as the ट्रेड डेफिसिट. सो अब देखो आप खुद से एक बार आइडिया लगा सकते हैं कि जब इंडिया से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट्स होंगी सो इट विल क्रिएट फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया. हमारे पास में इट मींस हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो कोई भी सेक्टर है वो हमारा डेवलप्ड है, एडवांस है. दैट्स व्हाई वी आर एक्सपोर्टिंग थिंग्स. सो हम वर्ल्ड को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर थी उसको अगर हम कंपेयर करें लास्ट से भी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, देन वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया.
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो टॉप पार्टनर कौन सा है ट्रेड में, वो है चाइना। तो चाइना के साथ में भी देखो हमारा -85,087 मिलियन डॉलर का हमारा इसके साथ में डेफिसिट है। रसिया के साथ में भी डेफिसिट है। वी हैव डेफिसिट विद इराक ऑल्सो, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूएई, हांगकांग एंड सिंगापुर। हाँ, बट वी हैव द लास्ट ईयर ट्रेड डेफिसिट नहीं था हमारा, यूएस के साथ था। वी हैड ट्रेड सरप्लस। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया दैट एटलीस्ट हमारा जो वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी इकोनॉमी जो यूएसए की है, उसके साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है। तो यहाँ आप क्वेश्चंस की फॉर्मेट में क्या क्या पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट जो है नोट करने हैं। सो इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ ट्रेड डेफिसिट, कि आपको समझना होगा कि व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, क्या है ये, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। और कितने के साथ में, 9 कंट्रीज के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और जिसमें कौन कौन है, चाइना, रसिया, सिंगापुर, कोरिया। सो इन 2023-24 हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट था चाइना, रसिया, सिंगापुर, कोरिया, इनके साथ में मेजोरिटी में अगर हम बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें और कुछ पॉइंट्स की, तो डाटा ऑल्सो शोड दैट द डेफिसिट विद चाइना, रशिया, कोरिया, हांगकांग इंक्रीज्ड। मींस इनके साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था 2022 से 23, मींस अगर हम इसको कंपेयर करें 22-23 देन 2023-24, सो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है इस ईयर से। अगर हम कंपेयर करेंगे तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो मींस 2022 and 23 will be compared with 2023-24, then we will find that इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है, while the trade gap with UAE, सऊदी अरेबिया और रसिया, इंडोनेशिया एंड इराक, वो हमारा थोड़ा सा उनके साथ में भी कम हुआ है, कि मीन्स हम उनके साथ में कुछ एक्सपोर्ट्स वगैरह हमने एक्स्ट्रा किया है। सो द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रोज देखो इतना बढ़ गया, रसिया के साथ में हमारा 57 हो गया, कोरिया के साथ 14 बिलियन डॉलर का हो गया, और जो हांगकांग है उसके साथ में हमारा इतना हो गया। सो बेसिकली इन सच टॉपिक्स और सच आर्टिकल्स यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द बेसिक पॉइंट्स। व्हाट बेसिक पॉइंट्स? ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या है, एंड जो टॉप हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, और जो कंट्रीज हैं उनके साथ में जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनमें से विच कंट्रीज और विद विच कंट्रीज इंडिया है ट्रेड डेफिसिट, एंड इंडिया का किसी के साथ अगर ट्रेड सरप्लस है तो उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। Now we are going to discuss one more important article, that is the editorial from the Hindu, और इसमें पॉइंट्स जो रेज किए गए हैं वो एडॉप्शन, किडनैपिंग, उन सबको रिलेशन में किए गए हैं, जो कि बच्चों की, बेबीज की जो किडनैपिंग होती है उसके रिगार्डिंग में। इफ वी डिस्कस द मेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल, सो इंडिया में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है मोस्टली ड्रिवन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मीन्स इंडिया में अगर कोई भी क्राइम होता है, मोस्टली वर्ल्ड में भी अगर हम किसी क्राइम की बात करें तो उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं मोस्टली, एक सोसाइटी का फैक्टर और एक इकोनॉमिक फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी ऑन वन एंड, जब पॉवर्टी होती है तो बहुत सारे क्राइम भी होते हैं। वेल्थ ऑन द अदर एंड, एंड अनमेट नीड्स और डिजायर्स। मीन्स कई बार जो सोसाइटी में हमारा स्टेटस होता है वो, या हमारे जो इकोनॉमिक डिमांड्स होती हैं और हमारी डिजायर्स होती हैं वो, और अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती तब मोस्टली इस टाइप्स के बहुत सारे क्राइम इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर होते हैं। द रिसेंट इंटरस्टेट बेबी स्मगलिंग रैकेट, अभी हुआ क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि तेलंगाना पुलिस ने एक बेबी स्मगलिंग का रैकेट उन्होंने बस्ट किया है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं कि बच्चे का जैसे नाइट में उसका बर्थ हुआ, वो 2-3 दिन उसकी एज हुई, उन बच्चों को, बेबी को क्या कर लेते हैं, वो थेफ्ट उनका हो जाता है, उनको चुरा लेते हैं और मार्केट में जाकर के उनको सेल कर दिया जाता है।
So first of all, I am here just making you aware about the basic points of this topic. उन बच्चों को मार्केट में सेल किया जाता है। अब इनको परचेज करने वाले कौन होते हैं? परचेज करने वाले होते हैं मोस्टली, इसमें जो परचेज करने वाले होते हैं वो होते हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। बच्चों को अडॉप्ट ये क्यों करना चाहते हैं कि या तो इनके खुद के बच्चे नहीं होते, मोस्टली इनके बच्चे नहीं होते, तो उस वजह से ये क्या करते हैं, मार्केट से बच्चों को फिर जो चोर चुरा करके लाते हैं उनको ये परचेज करते हैं। बच्चों की उसमें कीमत होती है कई बार 1.5 लाख, 80,000 या 5 लाख, 5.5 लाख तक इनकी जो है रेट चलते हैं मार्केट में कि बच्चे को उठा कर लाओ और हमको इतने में बेच दो। उसमें 20 में बहुत सारे जो है जो मीडिएटर्स इसमें लगे होते हैं। सो बच्चों को कई बार चुरा लिया जाता है, हॉस्पिटल से चुरा लिया जाता है, घरों से चुरा लिया जाता है, ठीक है। जो कई बार जो फैमिलीज होती है व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, देन उस टाइम पे भी बच्चों को चुरा लिया जाता है। सो न्यूज में अगर हम बात करें तो ऐसे स्मगलिंग रैकेट्स ऑल ओवर इंडिया है और इस पर इंडिया बहुत सारे लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऑपरेशंस भी चलाती रहती है, बट अभी तक हम इस पर कोई ऐसा काम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली और भी इसमें काम हुए हैं, जैसे कि हम देखें एज पर इनिशियल रिपोर्ट द गैंग हैड बीन परचेजिंग बेबीज फ्रॉम 2 persons इन दिल्ली एंड 1 person इन पुणे। तो इनको पकड़ा तो जब ये दिल्ली और पुणे में बच्चों की जो मीन्स सेल परचेज चल रहा था वहां से इनको जो है अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है कि बच्चा आ जाता है और उसकी फिर बिडिंग होती है, वहां पर बोली लगती है। बिडिंग कैसे होती है, बच्चा सामने रख दिया, बोला भाई मैं इस बच्चे के एक पर्सन ए होगा वो कहेगा कि मैं इस बच्चे के 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ आपको। पर्सन बी होगा या कपल बी होगा, वो क्या बोलेगा, नहीं भाई ये बच्चा मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसको आपको 5 लाख रुपीज दूंगा या दूंगी। तो उन बच्चों को मार्केट में सेल कर दिया जाता है और ये लोग उनको परचेज कर लेते हैं। अब इनके कई बार चाइल्ड नहीं होते, ठीक है, कुछ मदर्स होती हैं जो उनके बच्चे नहीं होते, या कुछ पेरेंट्स होते हैं उनकी ओल्ड एज होती है या फर्टिलिटी उनकी खत्म हो जाती है, तो ऐसे इश्यूज में बच्चों की मार्केट में सेल एंड परचेज होती है, ठीक है। सो इट इज, ये यहाँ आपको मैंने बता ही दिया कि क्या इसमें मेन पॉइंट होते हैं। अब हम आते हैं इस पर कि अगर हम इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं सो इसके रीजंस क्या है। रीजंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीजन तो आता है सोशल रीजन। सोसाइटी में अभी भी ऐसे जो कपल होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उनके अगर बच्चे नहीं होते तो उनको बहुत ही एक अलग नजरिए से उनको देखा जाता है। कई बार उनको कर्ज किया जाता है, कई बार ये बोला जाता है कि ये लोग दुर्भाग्य हैं, अभाग्यशाली हैं, ठीक है, मिसफॉर्च्यून इनके साथ में इनके बच्चे नहीं हुए। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया इकोनॉमिक रीजन होते हैं। इकोनॉमिक रीजन कैसे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो पुअर होते हैं गांव में, बहुत सारे ऐसे इंडिया में रीजन्स हैं जहां पर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई अपने बच्चे को क्यों सेल कर सकता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं अपने न्यू बॉर्न बेबीज को सेल कर देती हैं, उनको बदले में कुछ पैसा मिल जाता है, ठीक है, ये भी कारण होता है। अनोदर जो रीजन है उसमें है कि डिले इन एडॉप्शन। अगर आपको कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो इंडिया में करीब 2 से लेकर के 4 और 5 इयर्स तक का टाइम लग जाता है बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, लीगली अगर उसको हम अडॉप्ट करते हैं तो। अब होता क्या है कि बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, कपल हैं, वो इतने ईयर का वेट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, मार्केट से फिर स्मगलिंग के थ्रू बच्चों को लेते हैं और अपना जो है उनको अडॉप्ट करते हैं। अनोदर इशू क्या है कि जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो भी कई जगह पर उसमें ब्राइब चलती है बच्चे को अडॉप्ट जल्दी से जल्दी करवाने के लिए, जो लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होता है उसको बाईपास करने के लिए। ये भी प्रॉब्लम्स मार्केट में चलती है, ये भी एक रीजन है स्मगलिंग का, ठीक है। और दूसरा मैं आपको रीजन बताता हूँ, एक रीजन और है कि अभी रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो वुमेन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, वहां पर वुमेन क्या कर रही हैं कि अपने फिगर को सेव करने के लिए कि अगर हम प्रेग्नेंट होंगे और बेबी का बर्थ होगा तो हमारा जो फिगर है वो खराब हो जाएगा। अब ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी होती हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़ी होती हैं जहां उनका केवल जो बॉडी का जो शो है, बॉडी का जो फिगर है या फिगर का जो शेप है वो मेन रोल प्ले करता है उनकी करियर के लिए। जैसे मीन्स मान लो फैशन शो हो गया, फैशन वाला जो
फील्ड हो गया, या हॉलीवुड बॉलीवुड ऐसे कुछ फील्ड हो गए जहाँ पर फिगर का बड़ा रोल होता है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, वो दे डोंट वांट टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, सो दे आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन क्या कि बच्चे को मार्केट से परचेज कर लिया जाए या उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। सो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच होगी, जहां पर डिमांड हायर होगी और जो सप्लाई है वो लोअर होगी, तो इसके बीच का जो गैप होता है उसमें फिर चीजों की स्टार्ट होती है स्मगलिंग, वहां पर स्मगलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन इन इंडिया, जहां पर इस आर्टिकल में ये इन मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो फिर जो कपल्स होते हैं बाय हुक और क्रूक किसी भी तरीके से बच्चे को जो है अडॉप्ट करना चाहते हैं, चाहे उनको बच्चा कहीं से भी मिले। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू डू मैनी थिंग्स। अब इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे वर्क करने होंगे, एंश्योर सच इंसिडेंट्स डू नॉट अकर अगेन। What are the steps which government can take to provide effective poverty alleviation schemes? कि भाई ऐसी फैमिलीज को इंडिया से मीन सबसे पहले तो इंडिया से पावर्टी को फिनिश किया जाए, कि कोई भी माँ बाप इतना मजबूर ना हो, इतना कॉम्पेल ना हो अपनी इकोनॉमिक जो है सिचुएशंस की वजह से कि उसको अपना चाइल्ड भी बेचना पड़ जाए, और ऐसा होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की क्रिएट की जाए यूथ के लिए, जनरेट अवेयरनेस जो है सोसाइटी में अवेयरनेस जनरेट की जाए एडॉप्शन स्कीम्स के बारे में कि कैसे आप जो है स्कीम कर जो है बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल अडॉप्शन हो या किसी जो अडॉप्टिव पेरेंट्स के थ्रू अडॉप्शन किया गया हो, या जो है रिमूव अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस इन अडॉप्शन। अब जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो ऑफिस बने हुए हैं, जैसे कि इंडिया में एक एजेंसी है कारा, तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, इसमें बहुत सारे डिलेज हो जाते हैं, तो इन डिलेज को भी हमें कम करना होगा। एंश्योर इफेक्टिव पॉलिसिंग टू निप सच प्लॉट्स इन द बड। हमारी जो पुलिसिंग है उसको हमें और जो है इम्प्रूव करना होगा, ताकि इस तरीके के हम बच्चों की जो चोरी हो रही है, उनकी स्मगलिंग हो रही है, उससे हम बच सकें। अब आप केवल बच्चों की स्मगलिंग को एक एंगल और इसमें आता है, कई बार मार्केट में जो बच्चों की सेल होती है, बच्चे केवल न्यू बॉर्न बेबीज की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, समटाइम्स बच्चे मान लो 15 to 16 ईयर्स के हो गए। अभी एक जो है झारखंड से एक ट्रेन आ रही थी और उसमें करीब 6 to 7 बच्चे थे, जिसमें गर्ल्स भी थी बॉयज भी थे, और वो उनका क्या किया था, उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी उनकी। और यही दिल्ली में जो आनंद विहार टर्मिनल है वहां पर वो ट्रेन आ रही थी, और उनमें से उन बच्चों को जो है रेस्क्यू किया गया गवर्नमेंट मींस पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, अब होता क्या है, इन बच्चों को कई बार इनसे जो है बैगिंग करवाई जाती है, हाथ पैर वगैरह इनके तोड़ दिए जाते हैं कि कहीं जा नहीं सके। कई बार इन बच्चों को अंधा कर दिया जाता है, ब्लाइंड कर दिया जाता है कि कहीं भाग ना सके, और इनके जो सुपरवाइजर टाइप के जो लोग होते हैं वो इनको कहीं भी रोड के किनारे बिठा देते हैं, और जितना पैसा कलेक्ट होता है शाम को वो उनसे पैसे को छीन ले जाते हैं, बस बदले में उनको खाना पीना वगैरह देते रहते हैं। और इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी निकाल लिया जाता है कई बार और मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो स्मगलिंग हो रही है, बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसको उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। बच्चों के साथ में और क्या होता है, इनके साथ में उनको पुश कर दिया जाता है, इसमें जो क्या बोलते हैं, पोर्नोग्राफी में उनको पुश कर दिया जाता है, या जो रेड लाइट एरियाज होते हैं उनमें उनको पुश कर दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, देह व्यापार करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, उनमें भी इनको बच्चों को पुश कर दिया जाता है जबरदस्ती बच्चों को। सो ये पूरा का पूरा बड़ा रैकेट चलता है ऑल ओवर इंडिया में, और स्पेशली इन द लार्ज सिटीज। सो ये बहुत सारे रीजन्स हैं, गवर्नमेंट को इन सब पर काम करना होगा, और जो सोसाइटी है उसमें जितना भी यूथ है, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा कि ऐसे किसी भी रैकेट्स में कभी ना फंसे। सो जब अपने जो खुद के पेरेंट्स हैं उनकी जो है हमेशा उनकी नज़र में रहें, उनके कांटेक्ट में रहें, कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो। अभी आपको देखो, मैं यहाँ से बताऊंगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कई बार पेरेंट्स की छोटी सी गलती
कितना बड़ा इशू क्रिएट कर देती है। अभी मैं आपको अपना लाइव एक एग्जांपल बताऊंगा 4-5 दिन पहले का। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने क्या किया, उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे की थोड़ी शैतानियों से परेशान होकर के रात को करीब 10:30 PM के आसपास उसको बोला कि मैं तेरे से तंग आ गई हूँ, यू गो आउटसाइड फ्रॉम दिस होम, उस घर से निकल जा, तू चला जा। बच्चा कितना है, 5th to 6th क्लास में स्टडी करता है वो, तो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, शरारती है। अब उसने क्या किया कि मम्मी की बात को उसने सुना और घर से बाहर निकल गया। ठीक है, अब घर से गायब हो गया। रात को 12-1 बजे तक उसको ढूंढते रहे सब लोग, वो मिला नहीं। सो देखो, अब इनको खूब उनकी पिटाई कर लो वगैरह कर लो, लेकिन जब ये बोला कि घर से बाहर चला जा, निकल जा, तो बच्चा जो है सीरियसली ले लिया, वो वहां से बाहर चला गया। अब जो ऐसे बच्चे कई बार बाहर रोड पर टहलते हैं, वो हाईवे पर टहलता हुआ मिला, रिंग रोड पर, उसको फिर रात को ढूंढ करके लाए, उसका पता चला। होता क्या, अब यही बच्चा अगर किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली टीम के जो स्मगलर्स होते हैं उनके हाथ लग जाता, तो वो उठा ले जाते इसको और मार्केट में सेल कर देते, इसके ऑर्गन्स निकाल लेते, या बैगिंग के धंधे में इसको, जो बिजनेस होता है उसमें इसको ले जाते वो। सो इंडिया में सोसाइटी को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है ऐसी इश्यूज से बचने के लिए। सो गाइस, वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन, टू मीट अगेन इन अनदर सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर।